developments coming from Himachal Pradesh. Sources tell Republic TV that Himachal, 14 Congress MLAs will be submitting their resignation to the governor's office by late tonight. So the political drama is unfolding right now. The suspense continues in Himachal Pradesh after the Rajya Sabha elections, and 14 Congress MLAs will be submitting resignation to the governor by late night. This is the latest we have as per sources. Top sources tell Republic TV. Congress government running in minority. The Congress government, remember, has admitted already that it is in minority. Aishwarya Kapoor, a political editor, joins us on the phone line for more. Aishwarya, this is a big update coming in. Congress government on the brink. Well, absolutely. What we are being told by our sources very clearly that 14 Congress MLAs led by the former Himachal Chief Minister Veer Bhadra Singh's son Vikramaditya Singh, who has already resigned from the Congress party, is going to be are basically going to be submitting their resignation to the governor of Himachal Pradesh late tonight or early tomorrow morning. That's the breaking news. This will bring the strength of the House, because to break the Congress party you would need two-third of the majority. That is according to the rule, brings up the number to 25, which still are not there. So they are 14, which means that they will be disqualified, and that means that the strength of the House of Himachal Pradesh, which stands at 68, will be brought down by 14, and which will be at 54, which will bring down the halfway mark to 27, and Congress will be a minority government then, as Congress will have 26 MLAs in their support. So every MLA counts, and that's why you see Sukhwinder Singh Sukhu still saying that I am not going to resign. I'm still fighting. I'm a fighter, because the margin is very, very low. It's just a difference of 1 or 2 MLAs. Back to you. Absolutely. Sources, of course, telling Republic TV viewers that 14 Congress MLAs are submitting the resignation, and Aishwarya was telling us that we expect that the MLAs could be disqualified, which will bring down the majority mark, and the Congress government will be in minority, which already is, of course, being reported to be in minority. So that is the latest we have right now. Now, what is next, Aishwarya, if you are there on the phone line with us? Because as you just mentioned, that Sukhu continues to exude confidence, at least on record. He tries to maintain that there is nothing of this sort. He is very much in touch with the MLAs. We have DK Shivkumar, we have Hooda also in Himachal Pradesh trying to troubleshoot the situation, holding meetings after meeting. But what next for the Congress party? But clearly the time is running out. All right, we seem to have lost the connection with Aishwarya, but we will continue to get all the ground inputs from Himachal Pradesh, as it is a cliffhanger right now for the Congress party. Let's take a listen to the reactions that have coming in the latest. मैं पहले इस बात को कह रहा था कि इनके पास बजट पास करने के लिए बहुमत नहीं होने की वजह से ये सस्पेंशन करेंगे, और आज वो सस्पेंशन की 15 विधायकों का सस्पेंशन किया। और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब बजट में बहुमत नहीं होने के कारण विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड किया गया। और सस्पेंशन तो उस सूरत में होता है जब हाउस के अंदर जो कार्यवाही के संचालन में हम बाधा करें। हम अपनी सीट पे बैठे थे, आराम से बैठे थे, और सारी चीज़ों को चर्चा करने के लिए हमारे सदन के सदस्य सारे तैयार थे हमारे दल के, लेकिन उसके बावजूद हमारा सस्पेंशन जिस प्रकार से किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बचाने के लिए किया गया, क्योंकि बहुमत नहीं है। अगर बजट पास करते हुए हम सदन के अंदर होते तो आज ही सरकार गिर जाती, क्योंकि बजट जब पारित नहीं हो पाता है बहुमत के साथ तो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है। ये एक नियम है, और उसके अनुसार इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई बेहतर होगा कि हम सस्पेंड कर दें। ठाकुर, आपको लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी भी थी कांग्रेस की? अगर आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाता तो और टाइम मिल जाता उन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करने के लिए? डीकेएस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर पहले कहा जा रहा था उन्होंने रेजिग्नेशन को लेकर कंसेंट दिया है ऑब्जर्वर्स को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आपको लगता है कि असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कभी कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को। ये जाना है, तय है। थैंक यू। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं।
हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। This is what respect this government has shown to my late father. इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज़, किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी, इस चीज़ पे जो है वो अच्छा नहीं लगा और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम, मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज़ के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज़ को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। I don't know. Congress party have just issued a direction that I should be there. See, I don't know why BJP is in such a big hurry. After all, there are 2-3 states. And any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. So, this is a very bad precedent which is going on in this country. Anyway,